Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 4th February and we'll be looking at next trading day. How can we find out probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones, along with the new trading plan for tomorrow, right? Tomorrow is the 5th February and it will be a Friday. So a Friday after 4 days of vertical rally, right? So you need to be careful in understanding the analysis and how you can take a trade either, intraday or swing, right? Before that, before the analysis, if you haven't yet subscribed to our YouTube channel, do consider subscribing and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get notification. And also be generous to share these videos with your friends and trading communities so that they can also get benefit from quality knowledge. Friends, let's look at how the rally so far had been in Nifty and Bank Nifty. Now, अगर आप देखें पिछले 4 दिन से निफ्टी लगातार वर्टिकल राइज में थी. सिमिलरली बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वी कैन से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 6 दिन से वर्टिकल राइज में है, राइट? सो क्वाइट अमेजिंग टू सी. Earlier we were seeing the bank nifty was not strong. Nifty was somehow stronger, but now you could see bank nifty is leading. Of course there are various reasons, whatever provisions have been made in the budget, and for especially for banking and financing sectors, that's what is governing the market as of now. So banks are rallying up, right? आज की मार्केट थी फ्रेंड्स नेगेटिव बायस के साथ में स्टार्ट हुई. ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो मार्केट रेंज बाउंड रही. लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग वाज विटनेस्ड. The cues came from the global market. Almost all the global markets were behaving in the same way. As I've been saying in my videos, that global markets are right now after, rallying up, are consolidating and correcting before taking a next move. तो हमारा मार्केट भी वैसे ही बिहेव कर रहा था. बट हाँ, हमारे मार्केट में थोड़ा जो प्री बजट की फियर थी वो थोड़ा ज्यादा थी, तो एफआईज ने सेल आउट किया था. एंड नाउ दैट फियर इज ऑलरेडी गॉन, सो दे आर टर्निंग आउट टू बी बुलिश. ओवरऑल आज मार्केट की सेंटीमेंट्स बुलिश रही अक्रॉस द सेक्टर्स एक्सेप्ट द आईटी में थोड़ा सेल ऑफ हुआ. आज के जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे फ्रेंड्स, एसबीआई, आईटीसी, बजाज फिनांस, श्री सीमेंट्स एंड ओएनजीसी थे. जो लूजर थे बड़े एशियन पेंट्स, यूपीएल, सिप्ला, इंडसइंड बैंक एंड एयरटेल थे. निफ्टी जो ओवरऑल आज का गेन रहा निफ्टी में, दैट वाज 106 पॉइंट इक्वल टू 0.71%, एंड निफ्टी क्लोज्ड एट 14,896, while as Bank Nifty gained almost 586 points today, and it closed at 35,345, right? And although Bank Nifty almost 200 पॉइंट के गैप के साथ में डाउन साइड में स्टार्ट हुआ था, बट एज आई सेड इन माय प्रीवियस डेज वीडियो दैट लोअर लेवल पे आपको यहाँ पे बाइंग नजर आएगी और मार्केट खुलते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी. जैसे भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट? अगर ओवरऑल मार्केट के ब्रेड्थ की बात करें तो ओवरऑल ब्रेड्थ मार्केट की पॉजिटिव रही. 28 स्टॉक्स एडवांस फ्रॉम द स्टैक ऑफ निफ्टी 50 एंड 22 डिक्लाइन. Broader market, Nifty large cap rose by 0.83%, mid cap 1.06% से rise किया, और small cap rose by 1.55%. हमने आज के लिए एस्टिमेट किया था निफ्टी का रेंज 14,500 से 15,000 and 34,000 से 35,200 for Bank Nifty with a high volatility and positive bias. That's how the market traded. Of course, Bank Nifty almost 200 point upside में जो रेंज डिफाइन की थी हमने उसके ऊपर गई. ट्रेंड पर्सपेक्टिव से हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं फ्रेंड्स, सो अप ट्रेंड कंटिन्यूज. Nifty as well as Bank Nifty both made a bullish candle today after negating the this hanging man pattern, right? Hanging man pattern में मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये एक पोटेंशियल रिवर्सल साइन होता है. नेक्स्ट डे हमको कंफर्मेशन देखना होता है, तो आज इसको नेगेट कर दिया गया तो कंफर्मेशन मिली नहीं. Weekly में again, if you see the weekly chart of Nifty and Bank Nifty, you would be surprised to see a large Marubozu, right? Bullish Marubozu बनी हुई है. And अगर आप recent past में देखोगे तो this kind of candle you would not be seeing much. Actually अगर आप देखेंगे post COVID जो movement हुए हैं, of course Nifty as well as Bank Nifty rose quite a lot in a week, but this particular week had been pendulous. Right now, let's look at the price action perspective. से हमको support and
रेजिस्टेंस लेवल्स क्या मिलते हैं, राइट। नाउ सपोर्ट लेवल अगर मैं निफ्टी के लिए बात करूं फ्रेंड्स, तो 14,845 व्हिच इज ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स डाउन ऑफ टुडेज क्लोजिंग, यू विल गेट अ फर्स्ट लेवल सपोर्ट। आज की जो ओपनिंग थी 14,775 पे हुई थी, दैट इज अ सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट। थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट जो हमको मिलेगा, आज का लो मिलेगा, विच वॉज 14,716, एंड फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट जो है हमको फ्रेंड्स 14,648 से 14,600 का ये कन्फ्लुएंस है, वेयर 23% फिबोनाची फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई इज ऑल्सो लाइंग, राइट। सो ये एक जोन है। निफ्टी ने एक अच्छा यहाँ पे बेस बनाया हुआ है अगर इन केस निफ्टी नीचे आती है तो। ऑन लोअर साइड वी कैन से 14,600 की रेंज हमको नीचे के साइड में दिखाई दे रही है। अपर साइड में अगर निफ्टी जाती है, यू नो दिस इज अनचार्टेड टेरिटरी, सो निफ्टी में जंप with any speed to any points, but 14,914 is today's high, and that will work as a tomorrow's first resistance. ये today का तो 14,950 second level of resistance है, and 15,000 is a psychological level, as well as that will be a milestone for Nifty if tomorrow it tries to touch it. 15,000 टूटने पे you can see 15,100, but 15,000 के लेवल पे काफी strong resistance है. So 14,600 से 15,100 we can say on the upside could be the move for Nifty tomorrow. बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में जो हमको सपोर्ट नजर आ रहा है वो 35,130 का एंड 34,908 का, जो कि हमारा कल का हाई पॉइंट है। थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो हमको आज की ओपनिंग प्राइस है, विच इज समवेयर अराउंड 34,516। 34,516 टूटेगी तो देन वी गॉट 34,050 का जो लेवल है, दैट इज 23% फिबोनाची एज वेल एज previous days low as well. So we can say 34,050 हमको लोअर साइड में दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में अगर किसी भी टाइप की बेरिशनेस आती है मार्केट में तो। And in case of Bank Nifty, again, fifth consecutive day move करता है upside में, you will see 35,413, which is today's high, as a first level of resistance. Second level of resistance मिलेगा 35,600 पे, उसके बाद में दो फिबोनाची लेवल्स है 35,870, 36,029 का, so that's on the upper side. But अगर 36,029 टूटता है तो then 36,200 का हायर लेवल हमारे पास में रेजिस्टेंस का। So we can say that 34,000 से 36,200 की ब्रॉड रेंज दिखाई दे रही है। नाउ we can say that by now the budget has sunk completely in the minds of the economists, the market participants, investors, traders. However, tomorrow further I'm expecting some more volatility because tomorrow we have a MPC's मीटिंग, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो कल है, तो उसका आउटकम कल आएगा रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स वुड बी डिसाइडेड। ऑल्दो इट सीम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अ म्यूटेड outcome of that meeting has already been considered in the or factored in these prices. ऐसा लगता है मुझे इन prices से। Let's see how it comes, but whenever the event is happening during that time, you will see the volatility in the market, right? Let's look at the data points and see what kind of levels have been created from bears and bulls on Nifty option chain, right? So 4th February की option chain friends close हो गई है, तो we'll be looking at 11th February option chain, क्योंकि आज प्राइस क्लोज हुई है 14,895 पे, तो we'll be talking 14,900 as a at the money option strike price, right? तो यहाँ पे इस लेवल पे हम देखते हैं 14,900 को अगर हम ATM कंसिडर करते हैं तो हमारे पास में जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी खासी 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आए हैं, सो दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट इफ द प्राइस गोज 14,900 एंड अबव। बट जो मेजर सपोर्ट हमको नजर आ रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको 14,800 का, और ये लेवल अगर टूटता है तो 14,700, जहां पे कि 11,871 कॉन्ट्रैक्ट्स है, दैट विल एक्ट एज S2, एंड यहाँ पे सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आज फ्रेशली आए हैं। अगर ये लेवल टूटते हैं फ्रेंड्स तो 14,500 का लेवल विल बी द अल्टीमेट, राइट। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम OI है आपकी, एंड यू कुड सी एक लाइक although ये नई ऑप्शन चेन है, 14,600 is also going to work as a strong support level.
Now, although this option chain is fresh today, जो कल से applicable होगी, but a little far off, you could see the maximum OI, right? So this will be our ultimate support for tomorrow. Although price action से हमको 14,600 की range दिखाई दी थी, right? But maximum open interest के हिसाब से 14,500 दिखाई दे रही है. Now let us look at what kind of positions bears have made by writing the calls, right? So bears are hopeful to pull down the market. You can see that 14,800 पे 10,000 contract है, 14,900, which is tagged above than the today's closing price. So that will act as a resistance one. Next जो level नजर आ रहा है वो दिख रहा है हमको 15,000 का, right? क्योंकि 14,950 पे कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है, बट 15,000 पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है, और दैट इज आल्सो इस सीरीज का मैक्सिमम OI है, राइट? ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है. सो यू कैन सी दैट दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर 15,100 का लेवल है. ऑल्दो 15,100 में कुछ खास लाइक ओनली 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव कम अप एंड 10,000 ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट? फिर उसके बाद में काफी स्कैटर्ड कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे, राइट? सो फ्रॉम दिस सीरीज आई कैन सी 14,600 से 15,000 की रेंज मुझे ऑप्शन चेन से दिखाई दे रही है. नाउ दिस ऑप्शन चेन पीसीआर फ्रेंड्स, अगर मैं 20% स्ट्राइक का पीसीआर पकड़ता हूं तो इट्स समवेयर अराउंड 1.15. सो दैट्स अ माइल्ड बुलिश पीसीआर, राइट? सिमिलरली बैंक निफ्टी का पीसीआर जो इस सीरीज के लिए निकल के आ रहा है 1.27 है. सो दैट मींस बैंक निफ्टी हैज मोर बुलिश bias, and range of bank nifty is somewhere around 35,000. अगर 35,000 टूटता है तो 34,500 से 36,000 की रेंज हमको ऑप्शन चेन से दिखाई दे रही है, एंड उसका भी बायस जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है. अगर हम फ्रेंड्स नाउ प्रोविजनल डेटा की बात करें, आज मार्केट के प्रोविजनल डेटा का मतलब है कि हम FIs और DIs की बात कर रहे हैं, या मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने आज FNO में कैसे पार्टिसिपेट किया है, we take that in provisional data. So FIs had been again today net buyers with a 1,937 crore equity in cash market, while as the DIs were a seller but small, 769 crore. So overall FIs ने दबा के बाइंग की, while as DIs ने प्रॉफिट बुकिंग किया. अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की बात करें फ्रेंड्स, तो FIs at this point of time are neutral, while as pros are very bullish, retailers are mildly bullish, and index future की अगर हम बात करें तो FIs are very bullish in index future, while as pros are bearish, retailers are neutral, and DIs are net short. So कुल मिला के अगर हम देखें तो लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो काफी हेज होके काम कर रहे हैं. अगर वो फ्यूचर में बुलिश हैं, तो उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, कॉल्स भी राइट करके रखी हुई हैं और पुट भी राइट करके रखी हैं, कॉल भी बाय करके रखी हैं और पुट भी बाय करके रखी हुई है. दैट्स प्रोफेशनल्स वर्क, राइट? अगेन US, यूरोप and Asian markets are correcting and consolidating at present, and you may expect the similar kind of bias you will also get in our market. Intraday trading plan के हिसाब से बात करें तो as of now it is buy on dip, sell on rise. As profit booking is very much prominent at levels when the market opens up, as DIs are booking the profits. And for swing trade, if you are long, as we have talked about, when this range was broken in back nifty at 32,750, and when the range of 14,750 was broken in nifty. So अगर आप long हो यहाँ पे तो stop loss के साथ में या trailing stop loss के साथ में आप long रह सकते हो. That's the swing trading philosophy right now. अगर RSI की बात करें, today RSI rose to 65, so Nifty looks bullish. So does Bank Nifty. इंडिया विक्स आज 2%, 2.6% कम हुआ. That's good news for bulls. Market now in daily is gone in extremely overbought zone. So कुछ करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है. वीकली में मार्केट न्यूट्रल है, बट मंथली में ऑलरेडी मार्केट ओवरबॉट जोन में था, एंड ऐसे में थोड़ा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है. निफ्टी पी हैज अगेन शॉर्ट
up by 40.8, 40.81, right? So as long as market 14,450 के ऊपर है, friends, it is bullish. Below than that, if it falls, we will consider it as turning to be bearish. So 14,700 to या 14,600 टू 15,000 की रेंज में कल आपको निफ्टी दिखेगी, और बैंक निफ्टी दिखेगी 34,500 से 36,200 की रेंज में, विद वोलेटिलिटी ड्यू टू एमपीसी मीटिंग, राइट? नाउ लेट्स गो इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, फ्रेंड्स, एंड सी हाउ वी कैन ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन इंट्राडे. सो मैं निफ्टी के चार्ट को एक्सपैंड करता हूं. जैसे कि हमने कल बात की थी कि ये रेंज में, ये वाली रेंज में आप ट्रेड न करें, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड होगी. और दिस इज प्रिसाइजली व्हाट हैपन. आई हैव सेड दैट अगर ओआरसी ब्रेकआउट होता है आपको एंड सस्टेन करता है 20-25 मिनट्स, देन यू कैन गो लॉन्ग. सो आज ओआरसी अपर साइड में ट्रेड किया, ऑल्दो ऐसे लग रहा था कि लोअर साइड में ओआरसी ब्रेक करेगा. ओआरसी ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं किया प्राइस लोअर साइड में, इसके लिए लोअर आज शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी थी. एंड अगर आपको याद हो, मैंने ये भी कहा था कि अगर 14,650 या 700 के आसपास में मार्केट आती है तो दिस विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी. दिस इज व्हाट प्रिसाइजली हैपेंड. अब कल के लिए क्या करें निफ्टी में? कल के लिए सिंपल है. अगर आप 14,845 से 14,914 की रेंज में निफ्टी को देखें सुबह, तो वेट फॉर ओआरसी ब्रेकआउट एंड सस्टेनेबली फॉर हाफ एन आवर. मतलब मार्केट ओआरसी ब्रेकआउट करेगी, प्राइस शुड सस्टेन अबव और बिलो ओआरसी, एंड देन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शुड गिव यू लॉन्ग और शॉर्ट रेस्पेक्टिवली. उसके हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं. मार्केट सपोज करो अगर लोअर साइड में ओपन होती है 14,700 पे या 14,650 पे, इवन 14,750 पे, यू वुड सी बाइंग इंटरेस्ट डेवलपिंग, राइट? एंड अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है फ्रेंड्स 15,000 के लेवल पे या 14,950 के लेवल पे, देन यू विल गेट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ हेयर, राइट? मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे आएगी, और हायर लेवल पे यू विल सी डीआईज विल डीआईज टूट पड़ेंगे अपने प्रॉफिट्स बुक करने के लिए, बिकॉज दे विल बी गेटिंग एक्सट्रीमली गुड प्राइस. सो अगर ऊपर के लेवल पे स्टार्ट हुए, डाउन साइड में ओआरसी ब्रेकआउट मिले, आप शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें, और जो लोअर लेवल्स होंगे ये आपके टारगेट बन जाएंगे, राइट? अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ फिलोसफी रहेगी. अगर 35,130 से 35,425 तक के रेंज में मार्केट खुलती है, तो वेट करें ओआरसी ब्रेकआउट का फॉर हाफ एन आवर, एंड उसके बाद में, क्योंकि ये जगह पे मार्केट रेंज बाउंड होगी. जैसे बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट इनिशियल 2 घंटा रेंज बाउंड थी, और ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे के आसपास में बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट मिला है सस्टेनेबल. सो कल भी ऐसे ही ट्रेड करें. अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन स्टार्ट होती है, लेट्स से 34,500 पे या 34,300 पे या इवन 34,600 के आसपास में, यू विल गेट बाइंग इंटरेस्ट इन दीज जोन्स, राइट? तो यहाँ पे ओआरसी अपसाइड में ब्रेक करेगी तो आप लॉन्ग पोजीशन ले लें. और अगर बैंक निफ्टी 35,600, 35,800 या 35,900 के रेंज पे ओपन होती है, लुक फॉर हाफ एन आवर ओआरसी ब्रेकआउट. ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है ओआरसी ब्रेकआउट बैक डाउन साइड में होगी. आप ओआरसी ब्रेकआउट होती है, प्राइस सस्टेन करता है लोअर साइड में, वीवैप आपको एंट्री देता है या सुपर ट्रेंड आपको एंट्री देता है, आप शॉर्ट कर सकते हैं. और ये जो लोअर लेवल्स होंगे फिर आपके 35,344, 35,130, 34,900 या 34,500, दीज विल बिकम योर डाउन साइड टारगेट्स. कब तक? करीब करीब 34,900 या 34,500 तक, राइट? ये रेंज में फिर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें. I hope friends with this you are able to understand how to make your trading plan for the next trading day such that you can be profitable. इंडिया विक्स यूएसडी आईएनआर का चार्ट एंड ऑप्शन का डेटा देखना न भूलें. ऑप्शन चेन काफी हेल्पफुल होती है टू अंडरस्टैंड बुल्स एंड बेयर्स next moves where they are creating support and resistance levels, whether they are bullish or bearish. So that will help you in gauging the market sentiments, current market sentiments जब भी ट्रेड कर रहे हो आप, राइट? सो लुक एट दैट. स्मार्ट मनी का मूव जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है. अगर आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें. अगर आप प्रॉफिट में हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं. कीप ऑन बुकिंग योर प्रॉफिट्स फ्रेंड्स. नोबडी हैज बिकम poorer by booking the profits. Thank you very much for watching the video, and thank you also for subscribing to our YouTube channel. If you haven't done it,
yet, please do it. And also don't forget to press the bell icon. Be generous to share the videos with your friends and trading communities so that they can also have access to quality knowledge. Thank you once again for watching and liking the video. Happy trading, happy investing, friends.